Hello. So in this video, we'll be solving 2024 informatics practices CBSE board question paper. Main exam जो हुआ था हमारा March month में. So let's start. So the first question that was asked in the exam was, in dash topology, the devices are arranged in the form of multiple branches in hierarchical manner. So the correct answer is hierarchical manner की बात करते हैं तो it is basically a tree topology. Okay. Next question is, Ridhima purchased a license for a copy of a software and made additional copies without the permission of the copyright owner. That means Ridhima ने सॉफ्टवेयर खरीदा और उसके बाद उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर ली उसने बिना ओनर की परमिशन के. सो दिस एक्ट ऑफ हर्स इज नोन एज योर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. एज क्योंकि अगर उसने उसका लोगो यूज़ किया होता या फिर उसके कंपनी का नाम में कोई चेंजेस करके कुछ अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते, दैट वुड हैव बीन ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट. पेटेंट आपका जो होता है दैट इज़ द इन्वेंशन, बट वो इन्फ्रिंजमेंट इसमें वर्ड लिखा ही नहीं हुआ है, सो इसमें तो आता ही नहीं है. एंड आइडेंटिटी थेफ्ट इज अगर आप किसी और की आइडेंटिटी यूज़ करके कुछ गलत काम करते हो, दैट इज़ योर आइडेंटिटी थेफ्ट. दैट मीन्स किसी और के ईमेल आईडी से किसी को मेल भेजते हो, दैट इज़ योर आइडेंटिटी थेफ्ट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कैन एन इंडिविजुअल डू टू एनहेंस द प्राइवेसी ऑफ अ डाटा स्टोर्ड डिजिटली. So if you see, the options are share sensitive information on social media platform. No. अब इसमें not नहीं लिखा. What we have to do to enhance the privacy. So use your date of birth as your password. No. Regularly update software installed on your device. Yes. Download and install software from unknown sources. No. So the correct option is the 3, that is regularly update software installed on your device. Now the next question is, what will be the output of the following query? Now if you see this here, we have the mod, मतलब we are using two functions here, power as well as mod. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, what we'll be doing is we'll be actually solving this portion. So mod में हम लोग क्या करते हैं, what we do is we'll be dividing 17 by the second number and that second number is 3. So what remainder we'll get? So if we divide 17 by 3, so 3 5 is 15 and the remainder that we'll get is basically your 2. So now अगर हमारा ये जो रिमाइंडर आया है, if we place this remainder instead of this mod, so now we'll be solving. So now if we solve, it is basically power 2 comma 2. So power 2 comma 2 is 2 to the power of 2, and what output we'll get? We'll get 4. So the correct answer is your 4. Okay. So now the next question is, which of the following is not an aggregate function in MySQL? So if you see the first one, AVG is an aggregate function, max is an aggregate function, min is an aggregate function. इसके अलावा दो और aggregate function होते हैं, that is your count and sum. So if you see the third one, L case, that is not an aggregate या grouping function, ये नहीं है. So the correct answer is L case. Next question is, dash is the gaining of unauthorized access to data in a computer system. So hacking is basically unauthorized access to data. So hacking is what? It is an unauthorized access to data. Fine. Next question is, which of the following is not true? ध्यान रखना, जब भी आपके MCQ वाले क्वेश्चन में नॉट लिखा हो ना, तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल सावधानी से करना, बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक्स बच्चे करते हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू CSV फाइल? द फर्स्ट वन इज, वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमा. यस. 2_CSV can be used to save a data frame to a CSV file. Yes. CSV file is created using a word processor. Yes. मतलब word processor से हम बना सकते हैं. CSV file is a type of a text file. Yes. अब सारे yes आ गए, इसमें तो not लिखा था. So the most probable answer is 3. CSV file is created using a word processor. हालांकि वो नहीं है, though all are correct options. So student should get marks for attempting the question. तो अगर आपने ये question attempt करोगे तो you would get full marks. ठीक है. So the most probable is basically word processor. दो word processor से बन जाते हैं, लेकिन word processor से normally हम लोग doc files बनाते हैं. We don't create CSV files. But yes, we can save a file using word processor as well to CSV. Okay, next question is, which MySQL command helps to add a primary key constraint to any table that has already been created? अगर आपका टेबल बन चुका होता है और उसके बाद उस टेबल के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है, डाटा में नहीं, टेबल के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन, दैट मीन्स आपके कॉलम ऐड करना है, कॉलम रिमूव करना है, कॉलम में डाटा टाइप चेंज करना है, साइज चेंज करना है या कॉन्स्ट्रेंट चेंज करना है. सो विच कमांड डू यूज? वी यूज ऑल्टर टेबल कमांड. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल्टर टेबल. Next question is, what will be the output of the following query? Now again if we see this particular question, तो इस question के अंदर यहाँ पे
we have subster. Subster is same as the mid and substring. So what is this? This 5. This 5 is basically the starting position. So starting position का मतलब हो गया कि fifth character से ये शुरू करेगा. So which is the fifth character? G is the first character, 2 is the second character, 0 is the third character. Then this space is also a character. So this is the fourth character, and just this particular T 2 is basically a fifth character. So we'll start from this, and यहाँ से शुरू, इस character से शुरू करते हुए हम कितने character fetch करेंगे? ये आपका 4 जो है, that is number of characters to fetch. So it will fetch 4 characters. तो 2 से start करते हुए 4 character fetch करेगा. So the output will be 2023. So the correct answer is 2023. Next question is, what will be the output of the following Python code? So we have imported pandas as PD, then dd एक वेरिएबल हमने लिया, उसमें एक डिक्शनरी क्रिएट कर दिया. नाउ इस डिक्शनरी से अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, सो उस डिक्शनरी के थ्रू हम लोगों ने एक सीरीज क्रिएट कर दी. सो वी हैव एक्चुअली यूज दिस dd टू क्रिएट अ सीरीज. तो जब भी आप डिक्शनरी से सीरीज बनाते हो तो जो की है वो उस की जो है वो इंडेक्सेस में चले जाएंगे सारे के सारे कीज, और जो आपके उसकी डाटा वैल्यूज हैं, मतलब उसके की और वैल्यूज, सो वैल्यू पेयर जितने भी होंगे वो उसके डाटा वैल्यूज फॉर्म करेगा सीरीज के अंदर. सो दैट इज 1 2 3 एंड 7. 1 2 3 एंड 7 ये हमारे इंडेक्स लेबल्स हो गए, और 1 2 3 और 7 न्यूमेरिक जो नंबर्स हैं, ये जो 1 2 3 7 ये वाले, ये हमारे डाटा वैल्यूज क्रिएट कर लेंगे. सो नाउ द काइंड ऑफ द सीरीज दैट इज बीइंग क्रिएटेड इज 1, उसके साथ में यू कैन सी दिस 1, उसके साथ में 1, देन 2 2 3 3, देन 7 7. ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन अभी कोडिंग बची हुई है. देन इट सेज RR4. नाउ RR4 इसके अंदर कोई इंडेक्स है नहीं है. सो दैट मीन्स इट विल अगेन क्रिएट वन मोर इंडेक्स लेबल 4 और उसके अंदर वैल्यू डाल देगा 4. सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. सो लेट अस सी मोर ऑप्शंस हियर. तो यहाँ पे अभी फिलहाल मैंने सिर्फ एक ही फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है. लेट अस सी द अदर ऑप्शंस एज वेल. सो इफ यू सी द नेक्स्ट अदर ऑप्शंस, सो वी हैव ऑल दीज ऑप्शंस. So which is the correct one? So the correct one is the last one, that is 1 2 3 7, and last में उसने create कर दिया 4 करके. So fourth one is the correct option. Okay, next question. Which of the following clause cannot work with a select statement in MySQL? Select के साथ from work करता है, yes. Insert into is a separate command. ये सेलेक्ट में हम यूज नहीं करते हैं. वेयर भी हम यूज कर सकते हैं सेलेक्ट में, ग्रुप बाय भी. तो करेक्ट आंसर इज इंसर्ट इनटू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल नॉट शो फर्स्ट 5 रोज फ्रॉम द पांडास सीरीज नेम्ड S1. अब अगर कोई सीरीज है S1, उसके अंदर से पहली 5 रो कौन सा इसमें फेच नहीं करेगा. अगेन मैंने दोबारा से बोल रहा हूं, जिस क्वेश्चन में भी नॉट आ जाए उसको बड़े ध्यान से करना है. मतलब कि आपको 3 यस मिलेंगे और 1 नो मिलेगा, वो करेक्ट होगा. ठीक है. नाउ इफ यू सी दिस द फर्स्ट, अगर हम पहले वाला देखते हैं तो इफ यू सी S1 सीरीज और 0 to 5, 0 to 5 का मतलब हो गया इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4. तो कितनी वैल्यू होगी? 5. 5 इंडेक्स नंबर 5 पे जो होगा ना उसको फेच नहीं करता कभी भी. इट विल फेच till 5 but not 5 at index number 5. Okay. Now if you say head S1.head, okay, this is correct. ये भी करेक्ट था हमारा. ठीक है, क्योंकि 5 वैल्यूज फेच कर रहा है और वो भी फर्स्ट 5. S1.head 5, क्योंकि डिफॉल्ट अगर इसमें आप कुछ भी मेंशन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट उसमें ऑटोमेटिकली 5 होती है वैल्यू. सो दैट इज दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट वन इज S1.head, देन विद इन पैरेंथेसिस 5. यस, यू कैन इवन पास एन आर्ग्यूमेंट कि कितने आपको फेच करने हैं. अगर नहीं पास करोगे तो 5 ही होता है, और पास करोगे तो उतने ही वो फेच करेगा. सो वी हैव ऑलरेडी पास 5, सो इट विल फेच अगेन 5. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. बट इफ यू सी द फोर्थ वन, सो इट सेज S1.head. अब यहां पे ये देखो, ये क्या लगा दिया इन्होंने. नाउ हेड इज अ फंक्शन. आप चाहे MySQL ले लो, चाहे Python ले लो, जो भी फंक्शन होगा उसके आगे हरदम ये पैरेंथेसिस लगेंगे. सो जो भी फंक्शन होगा उसके आगे पैरेंथेसिस लगते हैं. हेड इज अ फंक्शन बट ये पैरेंथेसिस नहीं लगे तो ऑटोमेटिकली ये गलत हो गया वैसे के वैसे. ठीक है. सो द रॉन्ग ऑप्शन इज बेसिकली द फोर्थ वन. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Rama was unable to understand how the recruiters were able to know about her digital activity when she has not shared anything with them. तो उसने कुछ शेयर नहीं किया, उसके बावजूद भी जहाँ पे वो जॉब के लिए गई उनको ऑलरेडी उसकी डिजिटल एक्टिविटी के बारे में सब कुछ पता था. सो द रिक्रूटर्स माइट हैव चेक डैश ऑफ रमा. तो कहाँ से पता चलता है? डिजिटल फुटप्रिंट से पता चलता है कि वो उसकी ऑनलाइन एक्टिविटीज कैसी रही हैं. सो दैट इज द फोर्थ वन, दैट इज डिजिटल फुटप्रिंट. Okay, next question is which MySQL string function is used to extract a substring from a given string based on a specified starting position and length. अब ये अगर आप देखोगे ये बोर्ड का पेपर है और अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था जिसमें सबस्ट्रिंग लिखा हुआ था. सो नाउ
वो जो फंक्शन था दैट वाज सबस्ट्रिंग, सबस्टर था वहां पे, बट यहां पे आप देखोगे तो सबस्ट्रिंग अंडरस्कोर इंडेक्स इज रॉन्ग, मिड सही है, सबस्टर सही है और सबस्ट्रिंग, तीन ये जो फंक्शन है नाम अलग अलग है लेकिन काम तीनों का एक ही है कि पहले वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे जाता है फिर एक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को फेच करता है. सो द करेक्ट आंसर इज मिड. ओके, next question is the software that is free for anyone and its source code is available for access, modification, correction and improvement is called. The correct answer is free and open source software उसको बोलते हैं हम लोग. Next question is dash helps in data protection through copyrights, patents and trademarks. कौन सी ऐसी चीज है जो हमें copyrights, patents और trademark तीनों से protect करती है, and that is your intellectual property right, that is IPR. Okay, so now the next question is cyberbullying can have serious emotional and psychological effect on victim, yes or no? Yes, it is very correct. Fine. Now reason is online bullying is not a crime. Online bullying is not a crime. No, online bullying is a crime. Okay, while offline bullying is a crime. No, so reason is wrong, assertion is true. So the correct answer is, इसका जो correct answer होगा that will be your A is true but R is false. That is the third one. Now next question is assertion, a series is a one-dimensional array, yes, and a data frame is a two-dimensional array, yes, containing sequence of values of any data type, int, float, list, string, etc. Yes, सीरीज और डाटा फ्रेम में हम किसी तरीके का भी डाटा डाल सकते हैं. सीरीज वन डायमेंशनल होता है और डाटा फ्रेम टू डायमेंशनल होता है. नाउ रीजन दिया हुआ है बोथ सीरीज एंड डाटा फ्रेम हैव अ डिफॉल्ट न्यूमेरिक इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0. यस, दोनों में ही जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है वो हमारी हरदम 0 से ही शुरू होती है. सो द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. ओके, नाउ ये हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए. नाउ अब हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग. तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन इज योर एक्सपैंड यूआरएल. ओके, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. आईपी के अंदर आप अगर सिंपल एक्सपैंड यूआरएल, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ एक्सपैंड करना है. एक्सपैंड का मतलब हो गया उसको फुल फॉर्म लिखना है. सो यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. देन इज आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल एंड डोमेन इन द फॉलोइंग यूआरएल. तो ये यूआरएल दिया हुआ है HTTPS, ठीक है, यू कैन सी दिस इज द यूआरएल. सो इसके अंदर हमें प्रोटोकॉल और डोमेन फाइंड आउट करना है. सो दिस इज योर प्रोटोकॉल, HTTPS इज अ प्रोटोकॉल एंड विच इज द डोमेन हियर. सो दिस इज nic.in इज अ डोमेन. आप बोलोगे कि सर ePathshala.nic.in भी तो होना चाहिए डोमेन. नो, ये जो होता है ना, ये दिस इज योर बेसिकली आपका, यू कैन से इसको हम बोलते हैं सब डोमेन. सो दिस इज योर सब डोमेन. फाइन. सो मेन डोमेन इज nic.in और जो हमारा ePathshala है दैट इज योर सब डोमेन. फाइन. ओके, इसमें और वाला क्वेश्चन भी था. और क्वेश्चन सेज राइट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी. सिर्फ एक फायदा बताना स्टार टोपोलॉजी का और एक नुकसान बताना स्टार टोपोलॉजी का. द एडवांटेज ऑफ अ स्टार टोपोलॉजी इज दैट इफ वन डिवाइस हैज अ प्रॉब्लम, अगर कोई एक नोड हमारा नेटवर्क में बंद हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, ओनली दैट डिवाइस और नोड इज अफेक्टेड, नॉट द होल नेटवर्क. पूरा नेटवर्क चलता रहेगा. ठीक है. डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि सारा के सारे डिवाइसेस एक डिवाइस से कनेक्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं हब या स्विच. अगर वो खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क ब्रेकडाउन हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा. ठीक है, दिस इज अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द स्टार टोपोलॉजी. फाइन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पाइथन कोड रिटन बिलो हैज अ syntactical errors. Okay, now when it says syntactical errors, so program execute ही नहीं करेगा. So rewrite the correct code and underline the corrections made. So the correct, if you can see the code here, और जब भी ये syntactical errors का कोई भी क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स का है, तो कंफर्म कर लेना कि 4 मिस्टेक्स आपको मिलनी है 100%. ठीक है. अगर आपने 3 मिस्टेक ढूंढ ली तो कोशिश करो एक और मिस्टेक उस क्वेश्चन में पक्का मिलेगी. ठीक है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई 4 मिस्टेक्स. तो इसमें एक ये टिप मैं आपको दे रहा हूं. सो नाउ फर्स्ट लाइन इंपोर्ट पांडाज एज पीडी के अंदर पांडाज स्मॉल लेटर में होगा क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है. तो पी अगर आपने कैपिटल लिख दिया तो रन नहीं करेगा क्योंकि उसको लाइब्रेरी मिलेगी ही नहीं. वो नेक्स्ट इज इफ यू सी द सेकेंड लाइन std, तो यहां पे कॉलन लगे हुए हैं. ठीक है. नाउ कॉलन किसके साथ लगते हैं? आपके हरदम डिक्शनरी के साथ लगते हैं. दैट मीन्स आपका करली ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज होगा. देन थर्ड इज इफ यू सी द थर्ड लाइन, सो इट सेज आपका s इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज. नाउ वहां पे लिखा हुआ p डॉट नहीं, जिस नाम से आपने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, जिस नाम से आपने यहां पे इंपोर्ट किया है वही सेम नाम यहां पे आना चाहिए सीरीज क्रिएशन के टाइम पे. अगर आपने यहां बाई चांस p दिया होता ओनली देन इट वुड हैव बीन p, अदरवाइज अगर आपने pd लिखा है तो यहां पर भी pd ही होगा. ठीक है.
दूसरी इसी सेम लाइन के अंदर एक और मिस्टेक आपको नजर आ रही है कि यहां पे हमने पैरेंथेसिस में कोडिंग में एस पास किया हुआ है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आपका जो आपने डिक्शनरी बनाई है आपने एसटीयूडी के नाम से बनाई, सो यू हैव टू पास दैट सेम डिक्शनरी हियर टू क्रिएट योर सीरीज. ओके, सो यू कैन सी हियर, सो दीज थिंग्स मस्ट मैच. सो ये आपका मैच करना चाहिए और ये जो आपका पीडी है ये इसके साथ आपका मैच करना चाहिए, तभी कोड करेक्ट वर्क करेगा, अदरवाइज कोड वर्क नहीं करेगा. ओके, नाउ प्रिंट एस, इसमें कोई गलती नहीं है. सो वी हैव ऑलरेडी फाउंडेड आउट द 4 एरर्स. एक पांडाज में पी की गलती है, कर्ली ब्रेसेस की गलती है, पीडी की गलती है और एसटीयूडी की गलती है. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंटैक्टिकल एरर का क्वेश्चन है, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई एटलीस्ट, आपका एटलीस्ट नहीं मतलब 4 गलती आपको मिलेंगी ही मिलेंगी पक्का. Okay, let's move to the next question. So what will be the output of the following SQL query? Now it says select right Chandrayaan 3. Now बहुत से आसान क्वेश्चन है. चंद्रयान 3 में से 4 करेक्टर्स राइट के 4 फेच करने हैं. तो राइट के 4 कौन कौन से हैं? YAN3. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. लिखना ऐसा ही है लेकिन राइट के 4 फेच करने हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट इसका आंसर देख लेते हैं. सो यान 3. नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्ट राउंड 76345.456, 2. अगर आपने मेरी पहले MySQL की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें राउंड में मैंने बताया था जब आपको ,2 लगा हुआ है, इस ,2 का मतलब ये हो गया कि आपको 2 डिजिट रखने हैं और एक्सेस डिजिट को आप रिमूव करोगे, तो यू विल बी रिमूविंग 6. Because you are removing 6 and it is more than 5 और 5 से बड़ा, 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो वो 1 कैरी दे देगा. तो that means now 45 will get a carry of 1 and you will get 46 as an output. So the correct answer will be 76345.46. ठीक है, अगर यहाँ 3 होता तो आउटपुट में 3 डिजिट होते यहाँ पे, अगर यहाँ पे 4 होता तो आउटपुट में 4 डिजिट एंड सो ऑन. सो राउंड इज वेरी सिंपल, इस तरीके से आप याद रखो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड. इंपोर्ट पांडाज एज पीडी. ठीक है, लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी. देन कॉम इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज. डायरेक्ट इन्होंने सीरीज बना दिया. नाउ 45, 12, 15, 200. ये बेसिकली क्या है, अब आप क्या करोगे कि रफ में पहले एक सीरीज बना के देख लो, ठीक है, क्योंकि आउटपुट की बात कर रहे हैं तो अगर आपके पास सीरीज नहीं होगी तो आप आउटपुट फाइंड आउट नहीं कर पाओगे. तो ये 45, 12, 15, 200 ये हमारे डाटा वैल्यूज हैं और इंडेक्स क्या है? माउस, प्रिंटर, वेबकैम, कीबोर्ड. सो दैट मीन्स नाउ आपका सबसे पहले माउस होगा, देन आफ्टर दैट वी विल हैव प्रिंटर, देन वेबकैम एंड देन कीबोर्ड. ठीक है, ये हमारे इंडेक्सेस होंगे. मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना. एंड देन नाउ यहाँ पे माउस के आगे इसमें 45 होगा, देन आफ्टर दैट प्रिंटर के आगे यहाँ पे 12 होगा, एंड देन आफ्टर दैट वेबकैम के आगे 15 होगा. ये हमारे डाटा वैल्यूज हैं, ठीक है, और कीबोर्ड के आगे 200 होगा. सो दैट मीन्स हमारा ये एक दिस इज आवर सीरीज, ये हमारी क्रिएट होगी. नाउ आउटपुट की बात कर रहे हैं तो प्रिंट ही जो है जो आउटपुट बताता है. सो इट सेज कॉम 1:3. नाउ जब हम 1:3 की बात करते हैं तो दैट मीन्स इंडेक्स नंबर 1 से शुरू करके 3 तक फेच करना है, लेकिन इंडेक्स नंबर जब भी बात करते हैं तो 3 को फेच नहीं करना. सो विल फेच ओनली इंडेक्स नंबर 1 and 2. तो इसका इंडेक्स नंबर है 0, इसका इंडेक्स नंबर है 1, इसका इंडेक्स नंबर है 2 और इसका इंडेक्स नंबर है 3. सो दैट मीन्स विल बी ओनली फेचिंग इंडेक्स नंबर 1 और 2. सो आउटपुट होगा प्रिंटर 12, वेबकैम 15. So this is the correct answer. So if we see the answer, the correct answer is printer 12, webcam 15. Okay, D टाइप नहीं लिखोगे तो भी मार्क्स आएंगे, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है. बट D टाइप जो होता है वो इस डाटा टाइप, ये जो आपका डाटा वैल्यूज है ना, उसमें किस तरीके का नंबर है. अगर इंटीजर नंबर है तो इट सेज int 32, अगर पॉइंट में होता तो इट सेज फ्लोट 64. ठीक है, एंड सो ऑन. Okay, so let's move on to the next question. The next question is, what is the primary function of a gateway in a computer network? Explain briefly. So gateway is a network device, ठीक है, to connect two dissimilar networks with different protocols. So that is the primary function of a gateway in a computer network. Fine. So next question is, consider the following Python code. Python code दिया हुआ already, ठीक है. Let us see what we have to do with this. So complete the above Python code to display the output. तो इस तरीके का हमें आउटपुट डिस्प्ले करना है. So now if we see the first line, if we see this first line, so answer is import pandas as pd. ठीक है, ओके, करेक्ट है. s1 is equal to pd dot series. सीरीज इन्होंने बनाया. अब 3 सीरीज बनेगा. अगर हम सीरीज के थ्रू कोई भी अपना डाटा फ्रेम बना रहे हैं तो यहाँ पे अगर 3 कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम इज नेम, सेकंड कॉलम इज सब्जेक्ट एंड थर्ड कॉलम इज मार्क्स, तो इसका मतलब 3 सीरीज बनेगा, एक नेम के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए, एक मार्क्स के लिए. तो इन्होंने फर्स्ट जो सीरीज बनाया वो S1
जो बनाया दैट इज फॉर द नेम्स. सो यू कैन सी हियर वी हैव मेंशन द नेम्स हियर, और इंडेक्सेस कॉमन होंगे, तीनों में इंडेक्सेस कॉमन होंगे, S1 S2 S3 तीनों में इंडेक्सेस कॉमन होंगे. और वो इंडेक्स क्या है, ये जो है 10 16 18, ये इंडेक्सेस कॉमन होंगे तीनों सीरीज के अंदर. ठीक है. नाउ अब अगर आप कोडिंग ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट लाइन तो ठीक है S1, S2 के अंदर हमारा क्या है, S2 इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज. सो नाउ S2 इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज, तो इसके अंदर सब्जेक्ट्स होने चाहिए. तो सब्जेक्ट्स क्या क्या है, IP, यू कैन सी द लाइन हियर, IP HSC एंड IP. ठीक है. और इंडेक्स कॉमन है 10 16 18. थर्ड लाइन अगर हम बात करते हैं तो थर्ड लाइन के अंदर S3 इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज, हमारे मार्क्स आ गए 56 67 86, और उसमें इंडेक्स कॉमन हो गया, फिर से इंडेक्स इज इक्वल टू 10 16 18. नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड कि कैसे काम हो रहा है. अब फाइनली व्हेन द सीरीज आर क्रिएटेड, आखिर में हम लोग क्या करेंगे, एक डाटा फ्रेम बनाएंगे. तो डाटा फ्रेम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, विल बी यूजिंग डिक्शनरी ऑफ सीरीज. तो व्हेन वी आर यूजिंग डिक्शनरी ऑफ सीरीज, तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि कॉलम का नाम क्या है. यहां पे कॉलम का नाम नेम है, सो वी पास ऑन नेम. ठीक है, कोट्स के अंदर. देन कॉलन, अब इसमें सीरीज का नाम यहां पे आएगा कि कौन सी सीरीज है नेम के लिए, तो वो सीरीज हमने बनाई है S1. सो यहां पे यू कैन सी वी हैव रिटन S1. सिमिलरली कॉमा करके देन कोट्स के अंदर सेकंड कॉलम का नाम दैट इज सब्जेक्ट. ओके, वी हैव पास्ड सब्जेक्ट हियर, एंड देन फिर कॉलन करके उस सीरीज का नाम किस नाम से स्टोर किया हमने, S2. अगर यहाँ पे S होता वी वुड हैव यूज्ड S हियर, लेकिन वो कोट्स में नहीं आएगा. कोट्स अगर आप दे देंगे तो वो उसको स्ट्रिंग वैल्यू समझेगा, वो वेरिएबल नहीं समझेगा. ठीक है. नाउ सिमिलरली यू कैन सी मार्क्स S3. ठीक है, वो तो दिया ही हुआ था खैर. ओके, नाउ आगे फर्दर हमारा है DF इज इक्वल टू PD डॉट डाटा फ्रेम, और हम किसको पास करेंगे, ये जो डिक्शनरी हमने बनाई है ना, ये जो डिक्शनरी बनाई है इसको पास करेंगे. सो DF इज इक्वल टू PD डॉट डाटा फ्रेम XIIA, जो ये हमने ऊपर डिक्शनरी क्रिएट की है, इसको हम लोगों ने पास कर दिया यहाँ पे. सो दिस इज हाउ दिस कोड इज बीइंग कंप्लीटेड. सो अगेन बहुत सिंपल कोडिंग थी. आपको सिर्फ ये जो है यू शुड नो हाउ वी कैन क्रिएट अ डाटा फ्रेम फ्रॉम द डिक्शनरी ऑफ सीरीज. अगर वो आता है तो ये कोड बहुत सिंपल है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन अपडेट एंड ऑल्टर टेबल कमांड्स ऑफ MySQL. जब भी डिफरेंस आता है खासकर MySQL के अंदर, तो पहला डिफरेंस तो आप सबसे पहले यही देना कि एक वो कौन सी कैटेगरी ऑफ कमांड है और दूसरा कौन सी कैटेगरी ऑफ कमांड है. तो अपडेट इज अ DML सेट ऑफ कमांड, वेयरएज ऑल्टर टेबल इज अ DDL कमांड. नाउ अपडेट से क्या काम करते हैं, अपडेट से हम कंटेंट्स या फिर वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं टेबल में, लेकिन ऑल्टर टेबल से हम टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं. एग्जाम्पल में आप उसका एग्जाम्पल जरूर लिखना कि आपको कोडिंग आती है अपडेट की. सो अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम का नाम इज इक्वल टू वैल्यू वेयर कंडीशन. सो यू कैन सी हियर आई हैव रिटन अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू 50 वेयर रोल एंड इज इक्वल टू 3. तो आप कोई भी आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन आपको सिंटेक्स के बेसिस पे कोई भी एक एग्जाम्पल लिख के आ जाना. सिमिलरली ऑल्टर टेबल की बात करते हैं तो ऑल्टर टेबल का जो कमांड हो गया, ऑल्टर टेबल टेबल का नाम दैट्स ए स्टूडेंट्स. देन अगर आपको कोई कॉलम ऐड करना है यू राइट ऐड वर्ड, एंड देन आफ्टर दैट दी कॉलम नेम और उसका डाटा टाइप. ठीक है. Okay, let us move to the next question, and the next question is consider the given table and write the following queries in MySQL. So ये हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है और उस पर बेस्ड हमें क्वेरीज लिखनी है इस टेबल पे बेस्ड. सो तीनों क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो तीनों क्वेश्चन में एक ही चीज मेंशन है, और वो क्या मेंशन है, डिस्प्ले डिस्प्ले एंड डिस्प्ले. तो जब भी डिस्प्ले आपको करना है कमांड, सो इट इज ऑलवेज द सेलेक्ट कमांड. ठीक है. सो तीनों के अंदर सेलेक्ट कमांड आएगा. सो लेट अस सी दी फर्स्ट वन. सो फर्स्ट इज टू डिस्प्ले SID एंड नेम. ठीक है, क्या डिस्प्ले करना है, SID एंड नेम डिस्प्ले करना है. अब क्वेश्चन से कुछ बच्चे देखते हैं तो बोलेंगे सेलेक्ट SID एंड नेम. नहीं, ऐसा नहीं, सेलेक्ट SID कॉमा S नेम. जो कॉलम का एक्चुअल नेम है वो आप टेबल से फेच करोगे. ठीक है, ना कि क्वेश्चन से फेच करोगे. सो यहां पे अगर आप देखोगे तो इट सेज SID, वी हैव टू फेच SID एंड S नेम. सो हम लोगों ने फेच करना है SID एंड नेम. सो SID के लिए तो कॉलम है यहाँ पे, यू कैन सी हियर SID, और नेम के लिए वी हैव द कॉलम S नेम. सो वी राइट सेलेक्ट SID कॉमा S नेम. फ्रॉम टेबल का नाम तो आना ही आना है. सेकेंड लाइन में हरदम ध्यान रखो फ्रॉम और टेबल का नाम कंपलसरी है, लिखना ही लिखना है आपको. ठीक है. नाउ उसके बाद आते हैं कि आपकी कंडीशन या फिल्टर लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है. ठीक है, ऑफ दोज स्पोर्ट्स, दैट मीन्स अब फिल्टर लगा हुआ है.
विच आर टू बी प्लेड इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो फिल्टर लगा दिया इन्होंने कि जो स्पोर्ट्स जो है सितंबर के महीने में खेले जाएंगे। सो नाउ डेट ऑफ प्ले में से हमें फेच करना है कि सितंबर कौन सा है। तो अब ऐसे कैसे पता चलेगा? सो उसके लिए हम लोगों ने बोला वेयर एंड देन डेट ऑफ प्ले में से मंथ निकाल दिया। सो वी यूज द मंथ फंक्शन एंड देन इज इक्वल टू 9। अगर यहां हम लिखते हैं मंथ नेम और डेट ऑफ प्ले इज इक्वल टू, फिर लिखते सितंबर पूरा, ठीक है, अगर मंथ नेम फंक्शन यूज करते। तो यू कैन हैव यूज मंथ और मंथ नेम, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू वांट टू राइट 9 और वेदर यू वांट टू राइट मंथ, ठीक है, नेम, द कंप्लीट नेम अगर लिखना चाहते हो तो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डिस्प्ले ऑल स्पोर्ट्स। नाउ इफ यू सी अगेन टू डिस्प्ले, फाइन, ठीक है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया कि कौन सा कॉलम डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो we'll use select and asterisk sign. So we'll use select and then asterisk sign, but यहाँ पे एक लिखा है all sports names, we have to display all sports names in lower case. तो we'll use select lower और s name दिखाने हैं। अब इसमें कंडीशन नहीं लगी तो where नहीं आया इसके अंदर, ठीक है। Now the next question is to display last two characters of all sports names. तो last two कैसे fetch करेंगे? Using the right function, so we use select right और s name. अब ये ध्यान रखना कि अगर right use कर रहे हो और कॉलम का नाम मेंशन कर रहे हो तो don't enclose that column name in quotes, गलत हो जाएगा, ठीक है। Then comma number, right के 2 fetch करने हैं, ठीक है, नेम में से। from तो कंपलसरी है, तीनों आंसर्स देखोगे तीनों में from टेबल का नाम कंपलसरी लगा हुआ है। Then after that we have where fees less than 1500. Now इसमें एक गलती मैंने कर दी है कि the table name is sports and यहां पे मैंने कस्टमर मेंशन कर दिया। I'll just rectify this. Now the table name is sports, so यहां पे from तीनों में sports आएगा, ठीक है। Now इसी में और पार्ट भी दिया हुआ था इसी क्वेश्चन के अंदर। So predict the output of the following query based on the table sports. Okay. Now select U case. अब आउटपुट देना है तो आउटपुट क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो जाता है बच्चे के लिए करने के लिए। उसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वेयर से शुरू करो, ठीक है। तो वेयर में क्या है, क्या लिखा हुआ है? SID5। SID5 कहां है? इस रिकॉर्ड को बिल्कुल अलग कर लो, तो मतलब आउटपुट इसी में से है बस, और कहीं से नहीं है ना। अब क्या इसमें से सारा दिखाना है? नहीं, हमें क्या दिखाना है? वी हैव टू डिस्प्ले दिस, जो सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में लिखा होगा ना, वो आउटपुट दिखाना है। तो अब इसमें क्या दिखाना है? ट्रिम करना है एस नेम, मतलब एस नेम पे आए, और ट्रिम मतलब लेफ्ट और राइट की जितनी स्पेसेस हैं वो सारी रिमूव कर दी। और रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो नाउ जब कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट आपका आ जाएगा बैडमिंटन इन कैपिटल लेटर्स। ओनली डिस्प्ले एस नेम इन कैपिटल लेटर्स, दैट्स ऑल, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के अंदर। नाउ सेकंड क्वेश्चन सेज दिस सेलेक्ट लेफ्ट एस नेम कॉमा 3 फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर डेट ऑफ प्ले ग्रेटर देन। नाउ अब अगेन मैंने बताया वेयर पे आ जाओ सबसे पहले तो, और उन रिकॉर्ड को अलग कर लो। अगर आपने ये अलग कर लिया बहुत आसान हो जाएगा आपको आउटपुट निकालना माइस्क्ल में से। सो डेट ऑफ प्ले ग्रेटर देन, इक्वल नहीं लगा हुआ, ग्रेटर देन, इट सेज 13 सितंबर 2024। तो अब आप ग्रेटर देन कैसे देखोगे? सबसे पहले ईयर देखो कि कोई 2024 से बड़ी ईयर है, यहां पे कोई नहीं है, ठीक है। मंथ देखो, ठीक है, मंथ हमारा आ गया, इसमें मंथ कौन सा है बड़ा? यस, दिस इज अ मंथ विच इज मोर देन 9, ठीक है, 9 से बड़ा ये वाला मंथ है हमारे पास। और है कि अगर हम देखेंगे इससे बड़ी एक और डेट आ रही है एंड दैट इज योर 25 सितंबर 2025। तो यहां पे डे पे भी आएंगे, अगर सेम मंथ आ रहा है तो मंथ तो 9 है लेकिन डे अब यहां पे 13th है, इस ये नहीं है, इससे इक्वल है, तो ये भी रिकॉर्ड हमारा फेच करेगा। सो अगर हम उसकी रिकॉर्ड की बात करते हैं तो उसमें भी, इस वाले रिकॉर्ड में भी हमारा क्या फेच करेगा? लेफ्ट के 3, सो दैट इज LAW and BAD, so this will be your correct answer. Okay, select substar coach ID, 1, लेकिन बाद में आएंगे इस पे, पहले where पे आते हैं। तो where में क्या मेंशन किया हुआ है? It says where s name is equal to cricket, where s name is equal to cricket। तो अब ये देखते हैं s name cricket कहां पे है। s name cricket एक ही है, ये रहा, ठीक है, only one। अब यहां पे लिखा हुआ है और बीच में, और मतलब या तो ये या ये, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। और तो अब लेट्स सी फीस 2000 से ज्यादा, 2000 या 2000 से ज्यादा कौन कौन सी है? सो वी हैव दिस पर्टिकुलर फीस विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2000। सो इन दोनों के लिए हम काम करेंगे। सो विल बी वर्किंग ऑन द थर्ड वन,
ये वाला रिकॉर्ड पे काम करेंगे और इस पे काम करेंगे. अब इन दोनों का क्या फेच करना है, लेट्स सी. सो इट सेज सबस्टर इज मेड, कोच आईडी ये रहा हमारा, ठीक है, एंड देन 1. सो स्टार्टिंग पोजीशन 1, तो 1 से शुरू करेंगे, तो एस से शुरू किया, इसमें भी एस से शुरू किया. कितने कैरेक्टर उठाने हैं ये दिया ही नहीं हुआ, तो लास्ट तक उठाएंगे. तो करेक्ट आंसर विल बी S3 एंड S4 ओनली. कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ ये पूरा फंक्शन. सो एक्चुअल में कोच आईडी S3 और S4 पूरा आएगा. Okay, let us move on to the next question. So next question is, to Kabir, a data analyst, has stored the voter's name and age in a dictionary. Now Kabir wants to create a list of dictionaries to store data of multiple voters. Now इसमें हमारा वो क्या करना चाहता है, मेन चीज आप यहाँ पे देखो, create a list of dictionaries. तो list of dictionaries अब देखना अभी कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं. टू स्टोर मल्टीपल डाटा ऑफ वोटर्स. ही ऑल्सो वांट्स टू क्रिएट डाटा फ्रेम फ्रॉम द सेम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज. मेन चीज है, अगर आपको लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनानी आ गई ना तो डाटा फ्रेम आसान है. ओके, नो अब यहां पे हमें पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो कि हम डाटा फ्रेम बना सकें. सबसे पहली लाइन तो अगर आप देखोगे, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, फर्स्ट लाइन, एंड द लास्ट लाइन शुड बी प्रिंट डीएफ, मतलब जो भी अपने डाटा फ्रेम बनाया है जिस नाम से. तो ये 2 लाइन तो हमारी कंपलसरी आनी है. दैट इज फर्स्ट इंपोर्ट पांडाज एज पीडी एंड लास्ट में उसको प्रिंट जो भी हमने डाटा फ्रेम बनाया है, ये मैंडेटरी है. ओके, अब इसके बीच में आते हैं. तो सबसे पहले जब आपको क्रिएट करना है थ्रू योर लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, जो मेन टास्क है इसके अंदर, उसके लिए सबसे पहले ये ध्यान रखो कि आपका लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में जो आपका डाटा दिया हुआ है उसमें इंडेक्सेस क्या है. तो इंडेक्सेस आर दीज. सो सबसे पहले इसको स्टोर कर लो आप एक वेरिएबल के अंदर. वी हैव स्टोर्ड दैट इन अ वेरिएबल. नेक्स्ट टास्क इज, नाउ यू विल बी क्रिएटिंग योर लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज. तो अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में ध्यान रखो, एक लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद हुआ, तो ये एक लिस्ट हो गई. अब उसमें वर्ड क्या है, डिक्शनरीज. सो मल्टीपल डिक्शनरीज है. यू कैन सी देर आर 5 डिक्शनरीज हेयर. अब 5 डिक्शनरी कैसे बनी हुई है, हर रो के लिए एक डिक्शनरी. अब पहली लाइन आप ध्यान से देखो, करली ब्रेसेस में वोटर नेम अर्जुन, वोटर एज 35. नेक्स्ट लाइन में देखो, वोटर नेम बाला, ठीक है. अब नेक्स्ट बच्चे का आ गया, मतलब नेक्स्ट जो भी एम्प्लॉय है या वोटर्स नेम है. सो बाला, देन 23, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट गोविंद 25. नीचे ध्यान से देखो, वोटर नेम गोविंद, वोटर एज 25. फाइन. So name similarly Dhruv 19 and Navya 18. So this is how we have created this list of dictionaries. तो ये हमारी list of dictionaries create हो गई. Now once that list of dictionaries is created, you just have to write this particular statement to create a data frame. Data frame का नाम is equal to, then after that जिस नाम से आपने ऊपर import किया अपने library, that is import pandas as pd, then pd dot data frame का d और f capital है. देन पास द डाटा दैट यू हैव क्रिएटेड. सो ये हमने डाटा पास की, ये इस नाम से बनाया है डिक्शनरी. अगर आपने डी के नाम से बनाया होता यू वुड हैव रिटन डी हियर, कोट्स में नहीं, अगेन, ठीक है. देन आफ्टर दैट पास द इंडेक्स दैट यू हैव रिटन. सो इंडेक्स मैंने आई के नाम से स्टोर किया है, तो खाली कॉमा करके आई भी लिखोगे तो भी चलेगा और इंडेक्स इज इक्वल टू आई लिखोगे तो भी चलेगा. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ डाटा फ्रेम यूजिंग योर लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेबल सेल्समैन गिवन बिलो. टेबल आ गया. अब यहां पे आप देखोगे डिस्प्ले नहीं है, दैट मीन्स सेलेक्ट कमांड नहीं आएगा इसके अंदर. ओके, फर्स्ट इज हाउ मेनी टपल्स. तो जब भी हम टपल्स की बात करते हैं तो टपल्स का मतलब होता क्या है ये समझ लो. टपल्स का मतलब होता है कितने रो हैं. टपल्स इज बेसिकली द रोज. सो हाउ मेनी रोज डज दैट गिवन टेबल हैव. अब रो कुछ बच्चे यहां से शुरू करते हैं, नहीं, यहां ये रोज हैं हमारी. These are the rows. जहाँ पे actual data होता है, these are the rows. So how many rows are there? So this is your first row, this is your second row, this is your third row, this is your fourth row, this is your fifth row, and this is your sixth row. So correct answer is 6. So how many tuples are there? Answer is 6. Next question is suggest the primary key. अब इसमें primary key कौन सा होगा? Primary key वो कॉलम होता है जो कभी रिपीट हो ही नहीं सकता. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कितने कॉलम्स इसमें हैं. So we have 4 columns: salesman ID, नेम, सिटी और कमीशन. तो ऐसा कौन सा कॉलम है जिसके अंदर कभी डुप्लीकेट डाटा आ ही नहीं सकता, एंड दैट इज योर सेल्समैन आईडी. सेल्समैन आईडी रिपीट नहीं करेगा कभी, हर सेल्समैन का नया आईडी होगा. नाम 2 सेल्समैन के सेम हो सकते हैं, 2 सेल्समैन के सिटी सेम हो सकते हैं, 2 सेल्समैन के कमीशन सेम हो सकते हैं, लेकिन उनका आईडी डिफरेंट होगा. सो द करेक्ट आंसर इज सेल्समैन अंडरस्कोर आईडी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
राइट दी माई सिक्वल क्वेरी टू डिस्प्ले, आ गया, डिस्प्ले आ गया. सो डिस्प्ले आ गया तो क्या आएगा, सेलेक्ट आएगा. डिस्प्ले आते ही समझ जाओ सेलेक्ट है. ठीक है, अब क्या डिस्प्ले करना है, ऑल द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कमीशन. सो हमें डिस्प्ले करना है ऑल द रिकॉर्ड्स. तो अब क्या डिस्प्ले करना है, सेल्समैन आईडी, नेम, सिटी, कमीशन, कुछ लिखा हुआ है इसमें नहीं. ये जो लिखा हुआ है ना कमीशन, ये बोल रहा है कि इस कमीशन के डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, पर ये नहीं बोला कि कमीशन ही दिखाना है. अगर ये बोला होता तो हम बोलते हैं सेलेक्ट कमीशन, लेकिन जब नहीं पता है कि क्या चीज़ दिखानी है तो वी वुड यूज सेलेक्ट स्टार. तो बहुत सिंपल है, विल यूज सेलेक्ट स्टार एंड देन फ्रॉम टेबल का नाम सेल्समैन, देन अरेंज करना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, यूल सिंपली राइट ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय के बाद उस कॉलम का नाम जिसके अकॉर्डिंगली अरेंज करना है रिकॉर्ड्स को, दैट इज कमीशन कॉलम. और डिसेंडिंग में लगाना है तो यू विल सिंपली राइट DESC वर्ड, कैपिटल स्मॉल कोई फर्क नहीं पड़ता. माई सिक्वल केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन हाँ पाइथन इज केस सेंसिटिव. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, police official arrested 4 members of an interstate gang for allegedly duping many people from different states on the pretext of providing them with the holiday packages after creating fake websites of tours and travels. अब सबसे पहली चीज़ इसमें अंडरलाइन क्या करने वाली चीज़ है कि फेक वेबसाइट उन्होंने बनाई. ठीक है, द साइबर क्रिमिनल सेंड फ्रॉडुलेंट ईमेल्स कंटेनिंग लिंक्स. अब उन्होंने क्या भेजा, लिंक्स भेजे उस फ्रॉडुलेंट वेबसाइट के, created by them. The victim in his complaint told police that he was offered a holiday package to Dubai for a total of 10 times in the next 10 years and was charged 1.45 lakh through his credit card. Answer the following question pertaining to the given news bite. Now identify the type of cyber crime mentioned in the above case. जब भी fake website, fake links, ये सब की बात होती है तो सबसे सिंपल चीज़ ध्यान रखना, phishing. Now, which act deals with such crimes in India? The act that deals with such crimes in India is IT Act, जिसको हम बोलते हैं Information Technology Act 2000. Now, suggest any one precaution that can be taken to avoid falling prey to such criminals. हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे हम precautions ले सकते हैं. So, we can check the authenticity of the company. हम चेक कर सकते हैं कि वो genuine company है या नहीं है. Please be very cautious of the lucrative deals. ध्यान रखो कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी डील्स मिल रही हो ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा और क्वेश्चन होने की हमें ज़रूरत है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकती हैं, बट वी हैव टू बी मोर कॉशियस अगेंस्ट दोज lucrative डील्स. फाइन, ओके. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इसी में और पार्ट था. सो ABC Electronics, a popular electronics retail chain, has been a prominent player in the market for years. However, recent concerns over environmental degradation in e-waste have prompted the company to rethink its strategies and practices. As the newly appointed sustainability manager, you have been asked to answer the following questions. Fine. So first, considering the environmental concerns associated with e-waste, outline any one negative impact of the electronic product on the environment. Okay, so e-waste क्या मतलब नुकसान पहुंचाता है. Now, e-waste creates air pollution, land pollution, water pollution. You can simply write that. Now, Gopal is a college student who recently bought his new smartphone from ABC Electronics. गोपाल ने ABC Electronics से अपना स्मार्टफोन खरीदा. He is excited about the new feature and improved performance of his new device. However, he is now left with his old smartphone. उसके पास लेकिन पुराना स्मार्टफोन वही बचा हुआ है जो काम कर रहा है, which is functional but considered outdated. Suggest him any one action that he can take for his old smartphone. So he can donate old smartphone so that it can be reused. And third is provide any one recommendation on how ABC Electronics can responsibly manage its e-waste while minimizing harm to the environment. So क्या कर सकते हैं? They can recycle the e-waste, thus minimizing the cost of making new smartphone as well as managing the e-waste. Now what they can actually do is they can recycle the e-waste, जिससे कि जो नए स्मार्टफोन है उसमें जो पार्ट्स निकलेंगे पुराने में से वो नए में यूज हो जाए और उनका कॉस्ट रिड्यूस हो जाए. ओके. Now next question is consider the given data frame password. तो data frame का नाम है password. You can see this data frame. So write Python statements for the following. To add a new row. अगर आपको नया row add करना होता है, so whenever you have to add a new row, यहाँ पे you can see 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब यहाँ पे एक और add करना है, row add करना है. So उसका syntax है data frame का नाम, ठीक है, and then dot loc. Okay. So data frame का नाम, then dot loc. एंड LOC के बाद आपको क्या करना है, वंस यू राइट LOC स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर. तो ऑलरेडी वी हैव 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंडेक्स नंबर. अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे
तो इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, यहाँ पे इंडेक्स नंबर कहीं पे मेंशन नहीं है, सिर्फ ये दिया हुआ है कि कोड नेम ये होना चाहिए वो ABC 123, कैटेगरी हमारा उधर नीचे होना चाहिए अल्फा न्यूमेरिक, और फ्रीक्वेंसी में 12.8 होना चाहिए, लेकिन दैट कोड इज नॉट मेंशन, इंडेक्स नंबर इज नॉट मेंशन. सो नाउ इंडेक्स नंबर हम अपनी तरफ से देंगे इज इक्वल टू, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट में तीनों वैल्यूज हम पास कर देंगे, और जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी, स्ट्रिंग वैल्यूज होंगी, वो कोट्स में आ जाएंगी, सिंगल कोट डबल कोट बोथ आर अलाउड, लेकिन जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो कोट में नहीं आएगी यहाँ पे. ठीक है. सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ वी कैन ऐड अ न्यू रो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डिलीट द रो विद रो लेबल 2. तो जो हमारी रो लेबल 2 है, ये रो लेबल 2 है, इस रो को पूरा डिलीट करना है. सो नाउ व्हेन यू हैव टू डिलीट अ रो, द सिंटेक्स इज डाटा फ्रेम का नाम, ओके, इज इक्वल टू अगेन डाटा फ्रेम का नाम डॉट ड्रॉप, एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर यू कैन सिंपली पास टू. अगर आप बाई चांस ये नहीं लिखते हो, इफ यू डोंट राइट पासवर्ड इज इक्वल टू, देन देर इज वन मोर ऑप्शन, यू कैन पास इन, यहाँ पे कॉमा करके यू कैन राइट इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. और एक और आर्ग्यूमेंट होता है एक्सेस इज इक्वल टू, वो बाय डिफॉल्ट 0 होता है, तो वो रो पे ही काम कर रहा होता है, इसलिए मेंशन करने की जरूरत नहीं है विद ड्रॉप, क्योंकि ड्रॉप एक ऐसा फंक्शन है जो रो और कॉलम दोनों को डिलीट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट वी पास. देन थर्ड question is to delete the column having column label. Again, so we have to delete the column now. So now what we have to delete is we have to delete this frequency column. ये पूरे column को delete करना है. तो कोडिंग सेम रहेगी, पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड डॉट ड्रॉप एंड आपका पैरेंथेसिस के अंदर फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग वाली वैल्यू है, तो इसलिए हम उसको कोट्स में मेंशन करेंगे. लेकिन फर्क क्या बचेगा रो और कॉलम डिलीट करने में? वो ये बचेगा कि जब भी आप कॉलम डिलीट करते हो तो ये पास करना एक्सेस इज इक्वल टू 1, ये कंपलसरी हो जाता है आपके लिए. ये एक्सेस इज इक्वल टू 1 मैंडेटरी है आपको लिखना, अदरवाइज वो रो को ही सर्च करता रहेगा फ्रीक्वेंसी के नाम की रो. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज 3 आंसर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूपम क्रिएटेड अ MySQL टेबल टू स्टोर द डिटेल्स ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स. सो ये नोबेल प्राइज विनर्स का एक टेबल है, टेबल का नाम नोबेल है. सो नाउ वी हैव टू राइट SQL क्वेरीज. So first display, second display, third display, okay, fourth display नहीं लिखा, लेकिन लिखा है count total number of winners. Okay, again वो भी display में ही आता है, counting भी. तो चारों में select statement है. Fine. अब first question की बात करते हैं, तो first question के अंदर सबसे पहली चीज है display what? Names. So we have to display only names of Nobel Prize winners. So we'll write name कहाँ पर है, किस कॉलम में name, ये नाम है सारे, these are names. So we'll simply write select winner. First question में select winner. So select winner from तो आएगा ही आएगा टेबल का नाम नोबेल. ठीक है, जब भी select आ गया तो from आप सेकेंड लाइन में अंधाधुन लिख के आना, बिल्कुल लिखना ही लिखना आपको from टेबल का नाम. Now अब कंडीशन, कंडीशन क्या है? कंडीशन दी हुई है लिटरेचर, एक कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है 1970, मतलब दोनों कंडीशन दी हुई है ऑफ नोबेल प्राइज विनर इन लिटरेचर फॉर द ईयर 1970. तो एक कंडीशन होगी लिटरेचर. अब लिटरेचर किस कॉलम में है? लिटरेचर इज इनसाइड योर सब्जेक्ट कॉलम, लिटरेचर इज इनसाइड योर सब्जेक्ट कॉलम, एंड वेयर इज ईयर? ईयर इज इनसाइड ईयर कॉलम. तो इन दोनों पे कंडीशन जब लगी हो, दो कॉलम पे कंडीशन लगी हो, तो यू विल बी पुटिंग एंड. ठीक है. सो इसलिए लिखा वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू लिटरेचर एंड ईयर इज इक्वल टू 1970. आप आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन राइट वेयर ईयर इज इक्वल टू 1970 एंड कैटेगरी इज इक्वल टू लिटरेचर, बोथ आर करेक्ट. नाउ द सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन सेज व्हाट वी हैव टू डिस्प्ले. अगेन सेलेक्ट आ गया, डिस्प्ले आते हैं सेलेक्ट. क्या डिस्प्ले करना है? सब्जेक्ट डिस्प्ले करना है और कैटेगरी डिस्प्ले करना है. सब्जेक्ट का कौन सा कॉलम है? ये रहा सब्जेक्ट कॉलम. कैटेगरी का कौन सा कॉलम है? ये रहा कैटेगरी का कॉलम. तो विल राइट सेलेक्ट सब्जेक्ट कॉमा कैटेगरी. ठीक है, तो पहली चीज तो हो गई, फर्स्ट लाइन कंप्लीट, सेलेक्ट सब्जेक्ट कॉमा कैटेगरी. सेकंड लाइन कंप्लीट हो गई, फ्रॉम नोबेल. तो सेलेक्ट सब्जेक्ट कॉमा कैटेगरी फ्रॉम नोबेल. अब कंडीशन देखते हैं. ऑफ विनर्स हुज, आगे ना कंडीशन हुज कंट्री इज नॉट नोन. तो जहां पे कंट्री इज, मतलब कंडीशन अल्टीमेटली कंट्री पे लगी हुई है. सो विल सिंपली से वेयर कंट्री इज नल. तो जहां पे ये वाली चीज आ जाती है कि जहां पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता है हमें, तो विल सिंपली से कॉलम का नाम और इज नल. ये स्पेशल कंडीशन होती है फॉर फाइंडिंग आउट कि कहां कहां पे ब्लैंक एरियाज हैं. तो ये नल है. ठीक है, तो वेयर कंट्री इज नल, सो इट विल ओनली रिटर्न दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड कैटेगरी. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं फिर से. सो डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ
डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल नोबेल प्राइज विनर्स हु वर साइंटिस्ट। अब इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि हमें कौन सा कॉलम डिस्प्ले करना है। पूरी लाइन दोबारा से पढ़ते हैं। डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल नोबेल प्राइज विनर्स हु वर साइंटिस्ट, बोला जो साइंटिस्ट हैं, पर ये नहीं बोला कि उनका विनर आईडी दिखाना या ईयर या सब्जेक्ट विनर, उनका नाम दिखाना है, कंट्री दिखानी है, कैटेगरी दिखानी है, कुछ नहीं बोला हुआ है। सो विल, जब यहाँ पे कंफ्यूजन हो, सिंपली राइट सेलेक्ट स्टार। सो इफ यू राइट सेलेक्ट स्टार, सो सेलेक्ट स्टार, देन सेकेंड लाइन में फ्रॉम तो आएगा ही आएगा टेबल का नाम, फ्रॉम नोबेल, और यहाँ पे कंडीशन है जो साइंटिस्ट हैं। अब साइंटिस्ट कौन से कॉलम में है, तो साइंटिस्ट आर इनसाइड दिस पर्टिकुलर कॉलम, यहां से पता चल रहा है कि ये साइंटिस्ट है, बाकी किसी कॉलम से पता नहीं चलेगा वो साइंटिस्ट है। सो विल से वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू साइंटिस्ट। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज काउंट टोटल नंबर ऑफ विनर्स हुज सब्जेक्ट इज लिटरेचर। तो हुज सब्जेक्ट इज लिटरेचर का मतलब वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू लिटरेचर हो गया। ठीक है, और काउंट हमें करना है, सो विल यूज सेलेक्ट काउंट और ब्रैकेट के अंदर एस्ट्रिक साइन। ठीक है, सो विल यूज सेलेक्ट काउंट स्टार, देन फ्रॉम टेबल का नाम आएगा ही आएगा, वेयर और कैटेगरी इज इक्वल टू लिटरेचर। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस रितिका कंडक्टेड एन ऑनलाइन असेसमेंट एंड स्टोर्ड द डिटेल्स इन अ डिफॉल्ट in a data frame result as given below. So this is our data frame. Now answer the following questions. Now predict the output. अब output बताना है। So यहाँ पे दिया हुआ है result.loc और loc के अंदर जहाँ पे ये कॉमा आ जाए तो उसका मतलब ये हो गया कि कॉमा से पहले रो है और कॉमा के बाद आपका क्या है, कॉमा से पहले आपकी रो हो गई और कॉमा के बाद ये जो चीज़ है ये हो गया कॉलम। सो नाउ वी हैव बीन गिवन दिस कि अटेम्प्ट्स पे हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं। सो वी आर पुटिंग अ कंडीशन ऑन द अटेम्प्ट्स एंड इट सेज ग्रेटर देन 1। जो भी अटेम्प्ट 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा अटेम्प्ट कहाँ पे है, एट 1 से अटेम्प्ट ये दोनों है, ये दोनों का मतलब हो गया ये दोनों। सो नाउ लेकिन इसमें हमारा क्या है कि दिस इज योर बुलियन इंडेक्सिंग, तो यहां पे ये रिटर्न करेगा ए फॉल्स, बी ट्रू, सी ट्रू एंड डी फॉल्स। सो दिस विल रिटर्न द आउटपुट एज समथिंग लाइक ए फॉल्स, बी ट्रू, सी ट्रू एंड डी फॉल्स। मतलब कि इंडेक्स तो दिखाएगा ही लेबल, लेकिन उनके आगे कि क्या रिटर्न किया रो ने, ट्रू या फॉल्स। तो फर्स्ट रो ने फेच किया फॉल्स, सेकेंड ने ट्रू, थर्ड ने ट्रू एंड फोर्थ वाले डी वाले जो लेबल था उसने फॉल्स। Now second question is write Python statement to display the last 3 records. Last 3 records के लिए we use result dot tail. अगर top की दिखानी है तो dot head, bottom की दिखानी है dot tail, और parenthesis के अंदर क्योंकि it's a function. So parenthesis के अंदर कि कितने last की कितनी दिखानी है, 3 दिखानी है तो bracket में 3. Now third one is write Python statement to display records of A and D row label. तो A और D सिर्फ A और D का दिखाना है, मतलब कि ये वाला रिकॉर्ड दिखाना है हमें and we have to display this one. So now if we have to display only these 2 rows, so we'll be using .loc. तो हम यूज करते हैं result.loc, और क्योंकि 2 फेच करनी है तो we'll enclose it into 2 square brackets. सिंगल के लिए तो एक सिंगल में चल जाता, लेकिन मल्टीपल मतलब 2 या 2 से ज्यादा के लिए आप डबल स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करोगे। ये नहीं है कि 3 फेच करना होता 3 स्क्वायर ब्रैकेट, नो। अगर आपको मल्टीपल फेच करना है सो यू एनक्लोज इट इन डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये चीज ध्यान रखना, फॉर एलओसी, फॉर रोज, ओनली फॉर द रोज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू राइट सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट टू रिट्रीव द डाटा स्टोर्ड इन द फाइल। सो वी हैव टू रिट्रीव मतलब रीड करना है। रीड करने के लिए वी यूज PD, दैट इज हम मान के चल रहे हैं कि हमने इंपोर्ट पांडास एज PD किया है। सो PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV और पैरेंथेसिस में फाइल का नाम दैट इज ऑलरेडी गिवन देयर एंड द डाटा फ्रेम नेम इज ऑल्सो मेंशन। यू कैन सी हियर डाटा फ्रेम का नाम है REGIS। कोट्स में लिखा है लेकिन यहां हम जब बनाएंगे तो ये कोट्स में नहीं आएगा। ठीक है, सो दीज आर द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 32. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So question number 33 is Excellent Consultancy Private Limited maintains 2 tables for its employees. So 2 टेबल नजर आ रहे होंगे आपको, एम्प्लॉय और रिवॉर्ड. Now write suitable SQL queries to perform the following task. So अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, SQL की कमांड है, पहला डिस्प्ले नहीं है, सेकेंड डिस्प्ले नहीं है, थर्ड डिस्प्ले नहीं है, फोर्थ इज अ डिस्प्ले, मतलब ये सेलेक्ट कमांड है. आप पहले आइडेंटिफाई कर लेना कौन कौन से सेलेक्ट है. तो ये दोनों सेलेक्ट कमांड है, बाकी ये जो फर्स्ट 1 2 3 है ये सेलेक्ट कमांड नहीं है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू चेंज द डिपार्टमेंट ऑफ शिवम टू IT इन द टेबल एम्प्लॉय. तो जो शिवम है उसका डिपार्टमेंट हमें चेंज करना है. इसका डिपार्टमेंट इंश्योरेंस है, यहाँ पे IT करना है. तो व्हेन यू हैव टू चेंज एनी वैल्यू यू हैव टू यूज एन अपडेट कमांड. सो द आंसर इज
अपडेट एम्प्लॉय, अपडेट टेबल का नाम, देन सेट, देन क्या चीज चेंज करनी है, डिपार्टमेंट क्या करनी है, इज इक्वल टू IT, किसकी करनी है, वेयर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू शिवम. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमूव द रिकॉर्ड. सो व्हेन यू हैव टू रिमूव द रिकॉर्ड, सो अगर हमें किसका रिकॉर्ड रिमूव करना है, अलीशा का. सो वी हैव टू रिमूव द रिकॉर्ड ऑफ अलीशा. ये रिकॉर्ड जो है पूरा हमें डिलीट करना है, इसका रिकॉर्ड पूरा गायब करना है. सो वी हैव टू रिमूव, व्हेन वी हैव टू रिमूव द रिकॉर्ड, द कमांड इज योर डिलीट कमांड. सो द आंसर इज डिलीट फ्रॉम द टेबल नेम एंड देन वेयर कंडीशन. ठीक है, इसमें सिर्फ ये आएगा कि क्या हमें सिर्फ ये बताना होता है कि हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है, किसका डिलीट करना है वो बताना है, दैट्स ऑल. सो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर एंड देन कंडीशन, दैट इज फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अलीशा. द थर्ड क्वेश्चन इज ऐड अ न्यू कॉलम एक्सपीरियंस. तो हमें अभी एक नया कॉलम ऐड करना है एक्सपीरियंस. तो नया कॉलम ऐड करने के लिए वी यूज एन ऑल्टर टेबल कमांड. सो इट सेज ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड कॉलम का नाम और उसका डाटा टाइप दैट इज INT. Okay, now the next question is display the first name, last name and amount of reward. So what we have to use is we have to display first name. हमें first name display करना है. We have to display first name, we have to display last name, we have to display amount. ये तीन चीजें डिस्प्ले करनी है, मतलब दो इस टेबल में से और एक उस टेबल में से. तो यहाँ पे eq join लगेगा. So we'll write select first name, last name, amount from दोनों टेबल का नाम that is employee, reward. Then where लगा के employee.employee_id is equal to reward.employee_id. That's the correct query. Okay. Now the next question is display first name and salary of all the employees whose amount is less than 2000. तो हमें क्या शो करना है? We have to display first name. We have to display first name. We have to display salary. But of only those whose amount is less than 2000. मतलब कंडीशन इसके ऊपर लगी हुई है. हमें दिखाना फर्स्ट नेम सैलरी, लेकिन कंडीशन यहां पे, तो अगेन इक्वी जॉइन लगेगा. ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट. सो विल राइट सेलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी फ्रॉम दोनों टेबल का नाम एम्प्लॉय रिवॉर्ड, वेयर इक्वी जॉइन करना पड़ेगा employee.employee_id इज इक्वल टू reward.employee_id एंड देन द कंडीशन दैट इज अमाउंट लेस देन 2000. ओके, so I hope you have understood this question as well. So इसी का और में भी क्वेश्चन है, so let's see that as well. So now excellent consultancy same question है. So write suitable SQL queries for the following task. So the first question is display the year of joining. अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चारों क्वेश्चन हमारे क्या हैं, we have display, 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 display. तो that means ये चार हमारे select कमांड हो गए. ठीक है, कंफर्म हो गया ये, फाइन. नाउ लास्ट वाला नहीं है सेलेक्ट कमांड, लेकिन फर्स्ट फोर जो है वो सेलेक्ट कमांड्स हमारे हैं. सो नाउ इट सेज व्हाट वी हैव टू डिस्प्ले द ईयर ऑफ ज्वाइनिंग. अब लेकिन ज्वाइनिंग कहाँ से है, ईयर ज्वाइनिंग डेट. सो वी हैव दिस ज्वाइनिंग डेट, लेकिन इसमें से हमें ईयर फेच करना है, ओनली द ईयर. सो व्हाट स्टेटमेंट विल राइट सेलेक्ट ईयर और ब्रैकेट में ज्वाइनिंग अंडरस्कोर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय, और दूसरे टेबल का इसमें जरूरत है ही नहीं. Now second question is display each department name and its corresponding average salary. अब यहाँ पे जब भी एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम ये आ जाए तो दैट मीन्स आपका ग्रुपिंग फंक्शन आप यूज कर रहे हो. एंड इट सेज व्हेन इट सेज ईच डिपार्टमेंट, तो इसका मतलब ग्रुप बाय डिपार्टमेंट है. ठीक है, सो द क्वेरी इज सेलेक्ट डिपार्टमेंट AVG सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय एंड देन ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. ठीक है, नाउ the third question is we have to display what? We have to display first name, we have to display date of reward of those employees who is joined on Monday from the table employee and reward. We'll see what we have to display. We have to display first name and date of reward. Date of reward is this one. So ये दोनों चीजें डिस्प्ले करनी है हमें. अब दो टेबल में से दो कॉलम आ गए तो अल्टीमेटली इक्वी जॉइन होना ही होना है. So we'll write select first name, date underscore reward from employee, reward, where equi join compulsory है employee.employee_id is equal to reward.employee_id and अब यहाँ पे है ना, ये आ गया ना joined on Monday. So joined on Monday का मतलब हो गया कि अब joining कहाँ से आ रही है, ये join है. तो इसमें से हमें Monday कैसे fetch करेंगे, day name. So this is a function day name और bracket में joining underscore date is equal to and then Monday. So this is how ये हमारा डे नेम फंक्शन यूज होता है. ठीक है, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं डे नेम कहाँ से निकालेंगे, सो डे नेम यहाँ पे यूज होने लगे. ओके, नाउ फोर्थ क्वेरी इज
display sum of salary of those employees whose reward amount is greater than 3000. reward amount is this column, ये amount वाला, ठीक है. So ये वाला reward amount है, इस पे condition लगी हुई है. So this is our reward amount. Fine. Now display the sum of salary of those employees whose reward amount is greater than 3000 from the table employee and reward. तो दोनों टेबल में से हमें सम दिखाना है. सो विल से सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा रिवॉर्ड फ्रॉम वेयर एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू रिवॉर्ड डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी एंड अमाउंट ग्रेटर देन 3000. एंड द लास्ट वन इज रिमूव द टेबल रिवॉर्ड. तो टेबल रिमूव करने के लिए, पूरा टेबल डिलीट करना है, तो उसके लिए वी हैव द कमांड एज ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम. ओके, नाउ let us move to the next question. The next question is this one. It says Fullman Tech Bengaluru is a company that deals with software development. They have different divisions, HR H1, जिसको नाम दिया गया H1, Sales H2 है, Production H3 है, Marketing H4 है. The layout of the Bengaluru branch is, आप देख सकते हो ये हमारी layout है. Now the management wants to connect all the division as well as the computer of each division. Distance between the division are as follows. Distance भी दिया हुआ है. We'll come back to that. Now आगे पढ़ते हैं इसमें, इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है. Now the question says again number of computers in each division, वो भी दिया हुआ है. Now based on the above specification answer the following questions. So suggest the topology. तो मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने previous पेपर के सॉल्यूशंस में कि जहाँ पे भी हमारी टोपोलॉजी की बात आती है तो हरदम आप लिख के आओगे स्टार टोपोलॉजी, ठीक है. सजेस्ट द टोपोलॉजी, जस्ट राइट स्टार टोपोलॉजी. फाइन, बिकॉज आपके 99% केसेस में रियल लाइफ में स्टार टोपोलॉजी ही इस्तेमाल होती है. वी आर स्टडिंग बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बट practically speaking star topology is the most efficient topology and that is the only topology that we use everywhere. So suggest the topology, answer is star, ठीक है. तो आंसर देखते हैं हम लोग, स्टार टोपोलॉजी. नेक्स्ट है ड्रॉ द मोस्ट एफिशिएंट केबल लेआउट. अब मोस्ट एफिशिएंट केबल लेआउट ड्रॉ करने के लिए उसका तरीका मैंने आपको बता रखा है. सबसे पहले देखो किस डिवीजन में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं. सो यू कैन सी H2 में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं. तो आप कुछ नहीं करोगे, आप ये हमारा ये है H1, H2, H3, H4. H2 से वायर निकाल के आप H1 पे लेके जाओगे, H2 से ही H3 पे, H2 से ही H4 पे, ठीक है. दिस इज आवर लेआउट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज Fullman Tech is expanding its reach and therefore it establishes a new office in Delhi. ये जो है अभी आप देख रहे हो HR, सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ये बेंगलुरु में है. अब वो दिल्ली में एक ऑफिस खोल रहे हैं. सो आउट ऑफ लैंड, मैन, वैन, व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क विल बी क्रिएटेड टू कनेक्ट बेंगलुरु ऑफिस विद दिल्ली ऑफिस. तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हमारा होता है. सो दैट इज बेसिकली योर वैन. सो द करेक्ट आंसर इज वैन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट द डिवीजन फॉर द प्लेसमेंट ऑफ सर्वर इन बेंगलुरु. सबसे ज़्यादा कंप्यूटर H2 में है तो सर्वर भी H2 में लगेगा. उसका जस्टिफिकेशन ये है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इन बेंगलुरु ब्रांच. रिपीटर. और रिपीटर की बात करते हैं तो जहाँ पे आप अगर अभी देखोगे H1, H2, H3, H4, तो आपको जो डिस्टेंस देखना है वो H2 से H1 के बीच में देखना है, H2 से H3 के बीच में और H2 से H4 के बीच में, ठीक है. सो इफ वी कम बैक, सो लेट अस सी द डिस्टेंस हियर. सो H2 से H3 ये रहा 140 मीटर, H2 से H4 ये रहा 125 मीटर और H2 से H1 के बीच में है 76 मीटर. नाउ इसमें कहाँ पर डिस्टेंस 100 मीटर को क्रॉस कर रहा है. तो इफ यू कैन सी दीज आर द टू सिनेरियोज, H2 और H2 टू H3 एंड H2 टू H4, जहाँ पे 100 मीटर से ज़्यादा क्रॉस कर रहा है. सो दैट मीन्स द रिपीटर विल बी प्लेस्ड बिटवीन H2 एंड H3 एंड H2 टू H4. इन दोनों के बीच में रिपीटर लगेगा. प्लेस्ड between H2 and H3 and कॉमा आप कर सकते हो and H2 and H4. तो H2 to H3 के बीच में, H2 से H3 के बीच में और H2 से H4 के बीच में आप रिपीटर लगाओगे क्योंकि उसका डिस्टेंस 100 मीटर से ज़्यादा है. स्विच और हब कहाँ लगाओगे? स्विच एंड हब विल बी प्लेस्ड इन ईच डिवीजन. हर डिवीजन में एक एक स्विच या हब लगेगा, ठीक है, टू कनेक्ट ऑल दी डिवाइसेस. Now the company's manager Miss Ritu is worried as to how she can extend and modify the functionality of the web browser. Help her by giving the names of any two tools. दो टूल के नाम बताने हैं जो आपके ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को बढ़ा सके, एक्सटेंड कर सके. So the answer is add-ons and plugins. Okay. So now let us move to the next question. This is the last question of this question paper 35. अगेन और में दिया हुआ एक है ये, नेक्स्ट वाला है. नाउ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ऑफ अ ग्रोसरी शॉप स्टोर्स द प्राइस ऑफ ऑल द फ्रूट्स एज फॉलोज. सो यू कैन सी द फ्रूट नेम्स is given, price is given, write suitable Python code to generate a bar chart.
तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, वी हैव टू राइट अ कोड टू जनरेट अ बार चार्ट ऑन द गिवन डेटा, ऑल्सो एड द टाइटल एंड द लेबल फॉर एक्स एंड वाई एक्सेस, ऑल्सो एड सुटेबल स्टेटमेंट टू सेव दिस चार्ट विद द नेम fruits.png. Okay, so the correct answer for this is first we'll import matplotlib.pyplot as plt. ठीक है, देन फ्रूट्स जो हमारा दिया हुआ है वही सेम लाइन आ जाएगी, प्राइस हमारा दिया वही सेम लाइन आ जाएगी. अब हमें क्या ड्रॉ करना था, वी हैव टू ड्रॉ बार चार्ट. यहाँ पे दिया हुआ है बार चार्ट, तो बार चार्ट के लिए हम यूज करेंगे plt.bar. ठीक है, और यहाँ पे पास करेंगे पहले एक्स एक्सेस का डाटा फिर वाई एक्सेस का डाटा. तो एक्स एक्सेस में हमारे फ्रूट्स आ गए और वाई एक्सेस में हमारे प्राइस आ गए जो हमने ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए. ठीक है, कोट्स में नहीं आएंगे, ध्यान रखना, वेरिएबल्स हैं क्योंकि ये. नाउ plt.xlabel आपका हमने वो कोट्स में हमने मेंशन कर दिया कि इसका क्या लेबल होगा, एक्स लेबल. वाई लेबल हमने प्राइस मेंशन कर दिया और टाइटल अपने मर्जी से मेंशन कर दिया प्राइस ऑफ ऑल फ्रूट्स. ठीक है, कुछ भी हम दे सकते हैं. देन plt.savefig दिया हुआ है कि वी हैव टू सेव द चार्ट विद द नेम ऑफ fruits.png. तो ये जब हम चार्ट को सेव करते हैं तो उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है दैट इज योर savefig. ठीक है, एंड पैरेंथेसिस के अंदर द नेम ऑफ द इमेज फाइल जिसके नाम से हमें सेव करना है. और लास्ट में plt.show इज मैंडेटरी, अदरवाइज उसके मार्क्स हाफ मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं, हाफ से 1 मार्क भी कई बार डिडक्ट हो जाते हैं. तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल. सो इसी का और पार्ट और देख लेते हैं. सो राइट पाइथन सुटेबल पाइथन कोड टू ड्रॉ द फॉलोइंग लाइन चार्ट. उसमें हमने बार चार्ट बनाया था और इसके अंदर हमें क्या ड्रॉ करना है, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन चार्ट. ठीक है, CO2 emission having the title and the X label as shown below. So और हमें सेव करना है अपने चार्ट को emission.png के नाम से. So let us start. So the first is we have to import matplotlib.pyplot as plt, and then after that what we have to use is we have to क्रिएट एन एक्स एक्सेस डाटा. तो एक्स एक्सेस में आप देखोगे यहाँ पे मंथ में दिया हुआ है आपके अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त. तो आप यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है मंथ लिखें, एम भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है किस नाम से आप सेव करना चाहते हो. ठीक है, देन आफ्टर दैट जो आपके ये वैल्यू है परसेंटेज, यू कैन स्टोर इन पी ऑल्सो और सम अदर वेरिएबल ऑल्सो, तो वो हमने मेंशन कर दिया है यहाँ पे. लेकिन ये आपको पास नहीं करना है, ये बच्चे कुछ गलती कर देते हैं, ये पास करते हैं. नहीं, आपको ये पास करना है. इफ़ यू सी हियर कि ये जो पॉइंट है ये किस पे, 40 पे, देन यह वाला किस पे, 50 पे. तो 40, 50, ये किस पे, 30 पे. तो देन 30 एंड देन दिस इज एट 60 एंड दिस इज एट 20. तो जितने आपको ये ध्यान रखना कि जब आपको ड्रॉ मतलब दिया हुआ हो, ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ हो, तो जितने आपके एक्स एक्सेस में वैल्यूज होंगे, सो यू कैन सी हियर वी हैव अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो 5 वैल्यूज हैं. तो यहाँ पे भी सिर्फ 5 ही वैल्यूज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं ना उससे कम. तो दी शुड मैच. अगर 5 वैल्यूज ऊपर है तो 5 वैल्यूज नीचे. नॉर्मली बार चार्ट और लाइन चार्ट में दोनों के अंदर आपका जो डाटा होगा वो न्यूमेरिक डाटा होना चाहिए, मतलब वाई एक्सेस का जो डाटा होगा वो न्यूमेरिक होना चाहिए, एक्स एक्सेस में कुछ कैसा भी डाटा हो सकता है. फाइन. Now we have to draw a line chart. So again, so this is a line chart. So we have to write here plot. Now after that you have to write here ये आपका months. ठीक है, जो वेरिएबल हमने यूज़ किया ये पास ऑन करोगे यहाँ पे एक्स एक्सेस के लिए, और जो हमने वाई एक्सेस का ये डाटा है ये हम यहाँ पास ऑन करेंगे. ठीक है, एंड देन plt.xlabel एंड देन यू कैन सी हियर कि जो लेबल है वो यहाँ पे मंथ्स एंड देन एरो साइन है, अगेन सेम मंथ्स एरो साइन दिया होगा. Then after that again percentage और ये you have to pass the same thing here as well. And then after that the title, so title ये mentioned है, तो you can see the plt.title ये mention हमने कर दिया. Then savefig किस नाम से करना है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, emission.png, so we pass on emission.png and then finally we write plt.show. So this was the last question of your question paper. So I hope you might have understood all the questions, and very thank you to all of you. Thank you.